So what are the different way to make your JavaScript asynchronous? What is asynchronous? I will definitely explain it in detail. But how we can make asynchronous? So uh, because calling JavaScript or writing JavaScript and executing JavaScript in the browser is different. Uh, there are different way of doing this, like executing JavaScript in the browser. So what are the different way? First, we can call it externally inside the document. We can write the code in inline as a script. Yes or no? There are two way. So just like here, I can show you index.html. So look at it. So if I want to write some inline JavaScript like here, so this is called inline JavaScript inside the document. I have explained it, right? Another one is external JavaScript file we can load from URL, right? This is app.js in external URL. So whenever browser render the HTML where it script src or any file, it found any file, then it will download and execute it immediately in synchronous mode, right? And it is inline JavaScript. So there are two ways to execute JavaScript inside the document, HTML document, राइट बट उसको एसिंक्रोनस कैसे करेंगे? तो इनलाइन को कैसे एसिंक्रोनस करेंगे और एक्सटर्नल फाइल कॉल करते हैं तो उसको एसिंक्रोनस कैसे करते हैं? तो मैंने आपको बताया था एसिंक, याद है? एसिंक कैन डिफर। यस सर। तो एक्सटर्नल फाइल को सब एसिंक्रोनस करना है तो कैसे काम करेगा? यहाँ पे खाली एसिंक लिखना होगा आपको, दैट्स इट। तो ये फाइल वर्क एज एन एसिंक्रोनस, वर्क इन एसिंक्रोनस मोड। एसिंक्रोनस मोड क्या है डिटेल बताऊंगा मैं, डोंट वरी। अब इनलाइन कोड सपोज ये लिख रहे हो, इसको एसिंक्रोनस कैसे करोगे? ये तो एक्सटर्नल फाइल है, इसको एसिंक कैसे लिख देते? इफ यू राइट समथिंग ए कीवर्ड लाइक ASYNC async, so JavaScript or browser will understand that this file will be downloaded and execute asynchronously, right? But how can we make this inline JavaScript asynchronous, or inside a file some bunch of code you want to make asynchronous? So pura file, what happened over here? The whole file is executed, will be executed in asynchronous mode. What is asynchronous mode? I'll explain, don't worry, right? But I want to make some bunch of code inside that file, or might be inline JavaScript to asynchronous. Then what are the different way? Okay, so first way is we have to use timer function. ओके, टाइमर फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो एसिंक्रोनस कोड ही होता है। क्लियर? जितना भी टाइमर फंक्शन है, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये दोनों स्पेशली हम यूज करते हैं। ये इसके अंदर कोई भी कोड लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एसिंक्रोनस हो जाएगा। फिर एसिंक्रोनस क्या क्वेश्चन आएगा? डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। क्लियर? अभी एसिंक्रोनस कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है वो ये एग्जांपल मैंने खाली आउटपुट दिखाता हूँ, फिर कैसे ये क्यों होता है फिर बताऊंगा, राइट? तो फॉर एग्जांपल ये एग्जीक्यूट करता हूँ, इसके बाद ये कंसोल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो आपका ये कैसे काम करेगा ना? पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जावास्क्रिप्ट एक्चुअली बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस और सिंगल थ्रेडेड, एंड इट एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये मैंने पहले से हम अपने पढ़े हुए। क्लियर? राइट? So according to our theory, it will execute from the top to bottom. So this first console in line number 1 will be executed first, then this for loop will execute, then this last console will be execute, which should console code execution ends, code execution start end. So in this sequence it will work, right? So हम देखते हैं कैसे काम करता है ये आउटपुट। So code execution start, code execution ends, इसके बीच में यहाँ पे सपोज कंसोल में कुछ प्रिंट करता हूँ मैं, आपको पता चल जाएगा console.log, and I want to print something like any single 1 so it will 1000 time it will print 1 inside log over here. In between code execution starts and code execution end. Look, 1000 time, 10,000 time it will print 11 then after execution of for loop the code execution ends. So sequentially it will work, it works, right? So line number
one will execute first, one executes first, then line number 4, then line number 13. Clear? Is it clear? Yes, sir. अब asynchronous करूंगा, if I want to make it asynchronous, then what happen? So let's, so timer function, कौन कौन सी टाइमर फंक्शन होता है? सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल. सेट टाइम आउट क्या करता है? इट विल एग्जीक्यूट योर कोड whatever you have written inside this callback which set timeout function accept the callback. जो भी कोड ये callback के अंदर लिखोगे वो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, बट after some time you can delay the execution of the code by putting this time over here, right? It is in millisecond. 2000 millisecond equal to 2 second, right? So it is after 2 second your code will be execute. So इसको मैंने क्या किया, ये कोड, ये एग्जीक्यूशन यहाँ से यहाँ स्टार्ट होगा. इसके बाद जो सिंक्रोनस कोड कैसे काम करता है, जो पहले ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, देन ये लाइन नंबर 7 विल बी एग्जीक्यूट. आफ्टर दैट this code should execute, right? But let's see what happened. This two code has executed first. Code execution start and code execution ends. Look at it, line number 1 and line number 13 execute first, ये और ये line. But in between this and the for loop में सब कुछ प्रिंट कर रहे हो तुम, जैसे मैंने उसमें प्रिंट किया था console.log 11. तो ये और ये सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होगा, बट ये कोड एंड ये कोड पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये 2 सेकंड के बाद ये एग्जीक्यूट हो रहा है. देखो ये पहले एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद 2 सेकंड के बाद ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर सो ये जो सेट टाइम आउट के अंदर मैं जो भी जितना भी फंक्शन सेट टाइम आउट के कॉलबैक के अंदर जो भी फंक्शन मैंने लिखा, इट एग्जीक्यूट आफ्टर सम डिले. अब बोला आपने सर डिले कर दिया, दैट्स व्हाई इट एग्जीक्यूट लेटर ऑन, एंड ये दोनों पहले एग्जीक्यूट हो गया, राइट? ये क्यों हुआ मैं बताऊंगा, बट ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है देखो आप, राइट? बट सेट टाइम आउट के अंदर जितना भी कोड लिखा है, मल्टी लाइन कोड लिखा है, बट वो सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट हुआ, बट द होल बंच ऑफ कोड एग्जीक्यूट लेटर रादर देन. ये फाइल में कितने लाइन ऑफ कोड है? 15 लाइन्स ऑफ कोड है, राइट? उसमें से टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होगा तो एक लाइन नंबर 1, देन ये एग्जीक्यूट होना चाहिए पूरा का पूरा फंक्शन, देन ये लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए अपने कोड के हिसाब से. बट ये क्या होता है, ये देन ये एग्जीक्यूट हो जाता है, देन वो क्यों मैं बताऊंगा. बट अभी देखो आप बोल रहे हो तो ये मैं डिले कर दिया, आई हैव ऑलरेडी मेक इट डिले, दैट्स व्हाई दिस कोड एग्जीक्यूट्स डिले. बट ये लेट्स मेक इट 0, मैंने कोई डिले भी नहीं किया, still the code execute inside the timer function execute always at the end. क्यों? देखो ये वाला कोड लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट फर्स्ट, ये पहले एग्जीक्यूट हो गया, देन लाइन नंबर 8, 10 एंड 12 एग्जीक्यूट. तो इतना तो अपने को समझ में आ गया, जो एसिंक्रोनस कोड हमेशा लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, कितना भी तुम कर लो, कुछ भी कर लो, बट ये हमेशा लास्ट में एग्जीक्यूट होगा. क्लियर? क्यों होगा मैं बताऊंगा. तो सिंक्रोनस कोड क्या होगा? सिंक्रोनस कोड व्हाट डज इट मीन? इट स्टार्ट एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम, स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो ये जितना भी कोड इन बिटवीन आएगा उसको एग्जीक्यूट करके फिर आगे बढ़ेगा. बट जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, कहीं पे भी एरर आ जाएगा तो वहां पे अटक जाता है, इफ यू आर नॉट हैंडलिंग द एरर प्रॉपर्ली और एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपर्ली ट्राई केस यूज नहीं किया, देन मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था आपको प्रॉब्लम आएगा. बट इतना तो पता चला सिंक्रोनस टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होना चाहिए. बट इफ इट इज एसिंक्रोनस कोड, देन व्हाट हैपन? It will execute always at the last, means after execution of every synchronous code, then your asynchronous code will start execute. अब देखो यहाँ पे सपोज मैंने कुछ कोड लिया, आपने बता रहे कि कितना डिले होगा. अब ये सपोज मैंने एक कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अब ये कंसोल निकाल देता हूँ अदरवाइज इट विल हैंग. अब यहाँ पे मैं 10,000 है तो और 2 शून्य बढ़ा दिया मैंने, तो ये बहुत टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, लेगा कि नहीं लेगा? इट विल टेक मोर टाइम, राइट?
बट स्टिल यहाँ पे 0 रखा हुआ है, स्टिल इट विल नॉट एग्जीक्यूट। ये सबसे लास्ट, ये एग्जीक्यूशन खत्म होगा, उसके बाद इसको एनेबल कर देता हूँ। चलो अब प्रिंट करके देख लेंगे। देखो अभी ये प्रिंट हो रहा है, उसके बाद एग्जीक्यूशन एंड्स आएगा, उसके बाद जाके आपका जो एसिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट होगा। देखना आप कितना प्रिंट हो रहा है कंसोल के अंदर, राइट। अब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा जब ये नहीं हुआ। कितना डाला मैंने, ओ माय गॉड, 1 मिलियन। It will take time then. So let's reduce 2 zeros here, 1020, so 10,000 ही रखते हैं। अब ये एग्जीक्यूट कंप्लीट होने तक कुछ ब्राउजर को करने नहीं देगा ये, देख रहे हो। ओके, लेट्स चेक। अब देखो मैंने किया और 10,000 तक, देखो ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट, देन 10,000 टाइम विद दिस लूप एग्जीक्यूट, देन कोड एग्जीक्यूशन एंड, उसके बाद आपका टाइम आउट फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। देखो इट विल वेट टिल दिस लूप आल्सो एग्जीक्यूट। डिड यू सी, इसको और एक बढ़ा देते 1 लाख टाइम। तो देखो ये वेट करके रहेगा, एंड आ जाएगा, पहले ये एग्जीक्यूट होता है, फिर ये एग्जीक्यूट होता है, फिर ये एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद जाके ये सेट टाइमर फंक्शन के अंदर जो भी यूज होता है। क्लियर। तो एसिंक्रोनस कोड बीच में जितना भी, वो तो जीरो डिले जीरो किया हुआ है, यहाँ पे डिले कितना किया है, 0, मतलब 0 मिली सेकेंड, मतलब बिल्कुल डिले ही नहीं होना चाहिए। बट स्टिल it execute first this, then all the synchronous code will be execute, after that at the end it will start execution, right? Clear, पता चला। तो what do we conclude out of it? कि asynchronous code always execute at the end, right? But why it is doing, why it is happening? तो मैंने आपको एक बार बताया था, आपको पता होगा तो, इवेंट लूप करके एक चीज आपको याद है, इवेंट लूप। जावास्क्रिप्ट में एक इवेंट लूप करके कंसेप्ट है। देयर इज वन concept called event loop in JavaScript which is used in backend side as well as in browser, means in server as well as in browser. So why it is responsible event loop? Event loop is something like a loop. What is its responsibility? Now it will check, every time it will check if your call stack is free or not. जैसे कॉल स्टैक फ्री होगा, ये मैसेज क्यू से डेटा लेता है। सो मैसेज क्यू, व्हाट इज मैसेज क्यू, एंड मैसेज क्यू में जो कोड आता कहाँ से? सो मैसेज क्यू में स्टोर होता है जितने सारे एसिंक्रोनस कोड अपने लिखते हैं इनसाइड ब्राउजर और सर्वर और इनसाइड फाइल, इट स्टोर्स इनसाइड द मैसेज क्यू। रिमेंबर, मैसेज क्यू और वर्कर सर्विस भी अपने, वर्कर वेब वर्कर भी एक कंसेप्ट है जो बाद में बताऊंगा, वो एडवांस में आता है। जितने सारे एसिंक्रोनस कोड है वो मैसेज क्यू में स्टोर करके रखता है। जैसे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट रीडिंग दिस फाइल एंड ऑल द कोड ओवर हियर, सो ये कोड एग्जीक्यूशन किया, जैसे वो एसिंक्रोनस कोड मिल गया तो ये क्या करेगा, उसको मैसेज क्यू में डाल देगा रादर देन एग्जीक्यूटिंग इट इन यूजिंग कॉल स्टैक, राइट। ये एसिंक्रोनस कोड को क्या करता है, ये कॉल स्टैक के अंदर, सॉरी मैसेज क्यू के अंदर डाल देता है। कॉल स्टैक में नहीं जाएगा, वो मैसेज क्यू के अंदर रख देगा वो। बट जितना भी सिंक्रोनस कोड है वो फिर एग्जीक्यूशन हो जाएगा। जैसे ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो कॉल स्टैक फ्री हो जाएगा, एंड एज सून एज द कॉल स्टैक विल बी फ्री, then event loop will check that if that your call stack is free now, then it will take the first in instruction to call stack। ये क्यू है, क्यू में क्या होता है, जो फास्ट आता है वो फास्ट निकलता है। फर्स्ट जो इन होता है क्यू में,
वो फास्ट निकलता है, स्टैक में जो फर्स्ट इन होता है वो लास्ट निकलता है, राइट। तो एक क्यू है, तो क्यू में क्या होगा, जो फर्स्ट इन हुआ होगा इस एसिंक्रोनस कोड, इट विल बी pulled by event loop to call stack, and call stack will then start execution of this asynchronous code, right। asynchronous code हमेशा मैसेज क्यू में स्टोर होता है, and event queue is responsible to find whether call stack is empty or not, then it will pull all the asynchronous code from message queue to call stack for execution, right। तो आप कहीं पे भी एसिंक्रोनस कोड आपके पास पड़ा हुआ है, देन इट विल हमेशा फाइल के अंदर कहीं पे भी एसिंक्रोनस कोड होगा, हमेशा ऑलवेज इट विल स्टोर इन मैसेज क्यू इनिशियली, देन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ योर सिंक्रोनस कोड, when your call stack will be free, then it will take one by one statement from queue and start executing, and कौन से सीक्वेंस में queue से गेट करेगा, जो फर्स्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा, आउट मीन्स वो कॉल स्टैक में जाएगा। क्लियर। एसिंक्रोनस कोड कैसे काम करता है पता चल गया आपको, कोई डाउट? हेलो। नो सर। ओके, सो आप जब कस्टम जावास्क्रिप्ट लिखते हो उसके एसिंक्रोनस करने के लिए एक्सटर्नल फाइल हो तो कैसे लिखना है, इनलाइन जावास्क्रिप्ट हो तो कैसे लिखना है, और एक्सटर्नल फाइल के अंदर कुछ पर्सन ऑफ कोड को एसिंक्रोनस करना है तो आप टाइमर फंक्शन यूज करके कर सकते हैं। But there are so many browser API, like I mentioned here, navigator geolocation is a browser API, means this method or function has been defined by browser itself, right? So there are so many APIs available, जैसे set timeout भी होगा या geolocation या DOM API, these are asynchronous function or asynchronous code. So these, whenever I write those functions, navigator.geolocation or set timeout or DOM API कुछ भी, document.getElement or anything, will execute always asynchronously, and asynchronously का मतलब क्या है, it will store in message queue। जैसे ये जावास्क्रिप्ट फाइल रीड करता है, यहाँ से रीड करना चालू करेगा तो ये दिख रहा है आपको, तो ये जो भी फंक्शन लिखा हुआ ये पहले कॉल स्टैक में जाएगा, फिर ये जाएगा कॉल स्टैक में, बट जैसे सेट टाइमर आएगा शो अलर्ट को क्या करेगा, वो मैसेज क्यू में डाल देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। फिर जैसे ये एग्जीक्यूशन ये फ्री हो जाएगा, देन ये एग्जीक्यूशन फिर सेट टाइम आउट, जो सेट टाइम आउट कोड एसिंक्रोनस कोड उसको फिर से कॉल स्टैक में ले जाएगा। और ये इवेंट लूप यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या करता है, जो भी कोड एसिंक्रोनस कोड उसको कॉल यहाँ पे और यहाँ से या यहाँ से ये क्या करता है, फुल करके मैसेज क्यू में डालता है, मैसेज क्यू में फिर यहाँ जाता है, फिर एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पे। तो इवेंट लूप क्या करता है, वो चेक करता रहता है ऑलवेज मैसेज क्यू में कोई कोड पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ है। if any code is available inside message queue, then it will pull it from here and there and put it in call stack. So it is pretty clear. Asynchronous, how can you make your own code asynchronous, or what are the different asynchronous API available in the browser? Browser API है, DOM API, DOM means document object model, DOM API है, नेविगेटर और जियोलोकेशन, ये जियोलोकेशन एपीआई जो भी है वो भी एसिंक्रोनस है। टाइमर फंक्शन के अंदर जो भी लिखोगे आप, सेट टाइम और सेट इंटरवल, इट विल आल्सो एसिंक्रोनस। इज इट क्लियर गाइस, इज इट क्लियर? यस सर। एसिंक्रोनस Yes, कोड, sir. एसिंक्रोनस कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्यों लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, आपको पता चल गया। एसिंक्रोनस कोड लिखते कैसे और कैसे पूरा फाइल को एसिंक्रोनस बनाना है, और या फाइल के अंदर कुछ पर्सन ऑफ कोड को आप एसिंक्रोनस बनाना है तो कैसे, ऐसे वर्कर करके भी, वेब वर्कर करके भी आता है, वो भी एसिंक्रोनसली यूज होता है, जो न्यू थ्रेड में चलता है, इसको बोलते हैं न्यू थ्रेड वर्किंग, वेब वर्कर, वेब वर्कर्स। ये आप पढ़ोगे, इसके बारे में भी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये भी क्या होता है, एसिंक्रोनस कोड होता है। और जो सर्वर से कॉल लगाते हैं अपने यूजिंग एजेक्स, वो भी एसिंक्रोनस कोड ही होता है, राइट। वो भी मैं बताऊंगा एजेक्स, राइट।
ये वर्कर डॉट जेएस, जैसे मैंने ये वर्कर करके एक ऑब्जेक्ट है, न्यू यूज करते हैं आपने टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था, और ये आपका जेएस फाइल है, राइट। तो इसको हम एसिंक्रोनसली कॉल करना चाहेंगे, तो इसको ये फाइल पूरा एसिंक्रोनसली कॉल होगा, राइट, पूरा फाइल एसिंक्रोनसली कॉल होगा। बट ये फाइल में कहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, कोड के अंदर एक्सटर्नल फाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ एसिंक्रोनसली, राइट। ये भी आप पढ़ सकते हो, स्पाउनिंग क्या है, डेडिकेटेड वर्कर, ये आप पढ़ सकते हो क्या है, राइट। So from tomorrow we'll moving towards how we can handle the asynchronous code. Asynchronous code कैसे लिखते हैं पता चल गया, बट हमको ये भी एपीआई कहाँ से asynchronous code आ सकता है, बट इसको हम हैंडल कैसे करेंगे, how we can handle the asynchronous code, right. So we'll continue from tomorrow. Thank you.